الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ہر طرح کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیبا ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کی خاطر نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ نے امت کے اوپر احسان عظیم فرمایا۔ محترم حضرات، جو گفتگو مجھے کرنی ہے وہ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق کرنی، سیرت عائشہ کے کچھ پہلو کو بیان کرنا ہے۔ اس قدر فضائل ہیں کہ ان کے فضائل کا بیان مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی گفتگو، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عائشہ یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک ہیں، اور سب سے چہیتی، سب سے پیاری بیوی ہیں آپ کی۔ گفتگو میں کچھ تفصیل کے ساتھ بات آئے گی، لیکن ابتدائی گفتگو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں 11 ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں۔ امت کے واسطے ایک وقت میں 4 بیویوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ دشمنان اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہوانی، شہوت والے انسان سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں کہ انہوں نے اس قدر جو ہے وہ شادیاں کی۔ لیکن ان دشمنوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، یا معلوم ہے، اور لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سے 50 سال تک صرف ایک بیوی کے اوپر اکتفا کیا، یعنی جوانی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہو رہی، اور بعد میں جو بھی شادیاں ہوئی ہیں وہ مصلحت کی خاطر جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اور آپ کی بیویوں میں سے انہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ باکرہ ہیں، یہ کنواری ہیں۔ ان کے سوا جتنی بھی بیویاں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب بیوہ تھیں اور سب سیبہ تھیں، شادی شدہ تھیں، بچے والیاں تھیں۔ بعض ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے 2 شوہر بھی پہلے سے تھے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے انسان ہوتے تو ابتدا سے ہی، شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورتوں کا انتخاب جو ہے وہ کرتے۔ تو کنواری لڑکیوں میں صرف ایک حضرت عائشہ ہیں کہ جن سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ ابتلا اور آزمائش ہم ابھی سماعت فرما رہے تھے، اور ماشاء اللہ کس قدر عمدہ اچھا مدلل بیان ہم اور آپ سن رہے تھے۔ ہر پہلو کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور جو مثالیں دی گئی ان مثالوں کے ذریعے سے واضح کر دیا گیا۔ ابتلا اور آزمائش کا سامان ہی نہیں ہو تو کیا آزمائش ہوگی، وہ ساری صورتیں جو ہے وہ بیان ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی بڑی ابتلا اور آزمائش کی رہی ہے۔ دشمنوں نے ان کے گھر کو، یعنی حضرت ابو بکر کا جو گھرانہ تھا، ان کو اخلاقی اعتبار سے نیست و نابود جو ہے وہ کرنا چاہا، اور نبی کے ازواج مطہرات کے اوپر میں سے حضرت عائشہ کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالا، اور نبی کو بھی صدمہ کے اندر مبتلا انہوں نے جو ہے وہ کیا۔ یہیں سے یہ بات بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ عالم الغیب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو بیوی کے اوپر تہمت لگ گئی، بدکاری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک جو ہے وہ خاموش رہے۔ کیسے پتہ نہیں ہوتا بھائی؟ یہ کیسی ابتلا اور آزمائش ہے؟ یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اور بھی دوسری مثال آئے گی، ابھی ہی جو ہے بیان کر دوں۔ حضرت عائشہ کا چونکہ ذکر آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے متعلق آتا ہے کہ کسی سفر کے اندر جب آپ یہ ہے کہ ضرورت سے جو ہے وہ گئی اور ہار جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ بعض لوگوں نے تو تہمت والا جو ہے واقعہ اسی سے جو ہے وہ جوڑا ہے، لیکن 2 واقعہ ہے۔ ایک میں جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے تیمم سے متعلق آیت نازل کی۔ حضرت ابو بکر کا گھرانہ جو ہے وہ ہمیشہ ہی ہر اعتبار سے برکت کا جو ہے وہ سبب ملتا ہے۔ جب لوگ پریشانی کے اندر پھنسے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں پا رہے ہیں، کیسے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے اور کیسے وضو جو ہے وہ بنائیں گے، اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیت جو ہے وہ نازل کر دی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے رب کا، اور کتنا بڑا فضل ہے، اور یہ کتنا بڑا انعام ہے تیمم، کہ آدمی اگر پانی نہیں پائے یا پانی تو پا رہا ہے مگر عذر لائق ہے، چھوئے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ بیماری بیمار ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی، ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ تو بہرحال اس واقعہ سے بھی کہ ہار غائب ہو گیا، اور ہار کہاں ہے کھوجا جا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو بھلا اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اب یہاں پہ چونکہ گفتگو جو ہے وہ نکلی ہے تو ایک اور واقعہ جو ہے میں بیان کر دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جو ہے وہ 70 صحابہ کو بھیجا، اور سب کے سب شہید کر دیے گئے سوائے چند کی۔ یہ کتنا دردناک واقعہ ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو اپنے صحابہ کو اس طریقے سے قربان ہونے کے لیے جو ہے وہ بھیجتے۔ بہرحال گفتگو کس خاتون کی ہے؟ اس خاتون کی یہ گفتگو ہے جو روئے زمین کے اوپر اس سے عظیم کوئی ہستی نہیں ہے عورتوں کے اندر۔ کیسا علم جو ہے وہ یہ رکھتی تھی، بڑے بڑے صحابہ ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے تھے، بڑی مہارت رکھتے تھے۔ کہنے والوں نے جو ہے وہ کہا، حضرت ابو بکر کا خطبہ سنا، عمر کا سنا، عثمان کا سنا، علی کا سنا، دوسرے لوگوں کا جو ہے سنا، لیکن ایسی فصیحہ جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ اور یہ ہے کہ اشعار وغیرہ کے سے بھی جو ہے وہ واقف تھی، یہ علم فرائض سے بھی جو ہے واقف تھی، بہت سا علم جو ہے وہ رکھتی تھی۔ جب کبھی بھی مشکل کا سامنا ہوا اور پریشانی ہوئی، کوئی ایسی بات آئی، دشواری پیدا ہوئی، تو ان کی طرف رجوع صحابہ جو ہے وہ کرتے، اور یہ مسئلے کا حل جو ہے وہ بتاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسی خاتون تھی۔ انہی کو شرف ہے آپ کی بیویوں میں سے کہ جن کی پرورش اسلام کے دودھ سے ہوئی۔ اور کب ان کی پیدائش ہوئی؟ پیدائش سے پہلے میں نام بتاؤں کہ ان کا نام کیا تھا؟ یہ صدیقہ ام المومنین
आयशा रजी अल्लाह अन्हा है सिद्दीका, ये सिद्दीका है, यकीनन ये हकदार है इस बात की कि ये सिद्दीका कहलाएं, और ये सिद्दीक की बेटी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो है वो बेटी हैं, जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन अबी कुहाफा था। सिद्दीक को सिद्दीक क्यों कहते हैं? सिद्दीक को सिद्दीक इसलिए कहते हैं कि मेराज का वाकया जब पेश आया तो दुश्मनों ने कहा कि अरे कल तक जो बात सुनते हुए आए हैं, जो कहते थे वो कहते थे, अब तो वो कहते हैं कि राथी में गए और राथी में घूम करके कहां से, बैतुल मक़दिस से जो है वो आ गए। अबू बकर ने जब सुना तो कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो हम इसके ऊपर यकीन रखते हैं, हमारा ईमान है। ये तो इतनी ही दूर की बात कहे तो ये तो सातवें आसमान से जो खबर आती है, हम तो उसके ऊपर ईमान रखते हैं। ये सिद्दीक की बेटी है और ये सिद्दीका है। इनकी माँ का नाम जो है वो क्या था? उम्मे रुम्मान बिन्त आमिर बिन उवैमर अल कनानिया, उम्मे रुम्मान की जो है ये बेटी है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत थी, इनकी कुन्नियत अब्दुल्लाह जो है वो थी। और इस्लाम के अंदर बिअसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो है वो चार या पांच में इनकी पैदाइश हुई, 4 या 5 में इनकी पैदाइश हुई। और इनकी उम्र जो है वो कितनी थी? 6 साल की थी। इस वक्त में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी किया। पैदाइश जो है ये बिअसतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4थे साल या 5वें साल के अंदर जो है वो हुई। और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 8 साल ये छोटी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनसे कहाँ शादी किया? मक्का के अंदर शादी किया। हिजरत से कबल की 2 साल कबल जो है वो शादी किया। और एक कौल यह है कि 3 साल कबल जो है वो शादी किया। और एक कौल यह है कि 1.5 साल कबल जो है वो शादी किया। इनकी उम्र कितनी थी? 6 साल की थी। इसके ऊपर भी बाद लोगों ने जो है वो एतराज किया है, अरे यहाँ भी 3 साल 4 साल में शादी जो है वो कर दी जाती है और रुखसती बड़ी उम्र में जो है वो होती है। एक से एक जो है वो लोग हैं। अगर 9 साल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती हुई तो इसमें क्या ताज्जुब की जो है वो बात है। यहाँ तो 6-7 साल की बाज़ बच्चियों, आम तरीके से नहीं, लेकिन अरब गर्म मुल्क है, वहाँ या खुराक और खाने पीने के नतीजे में भी या इस्तिस्नाई सूरत भी हो सकती है। एक साहब ने अभी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक बच्ची के बारे में मैं अपने किसी रिश्तेदार के मुताबिक जो है वो कहा कि देखिए ना, वो वहाँ रियाज में जो है वो रहती थी और वहाँ रहने के नतीजे में, खाने पीने के नतीजे में 7-8 साल की जो है उसको 14-15 साल के बच्चे का जो है वो, बच्ची का कपड़ा जो है जिस्म के ऊपर जो है वो आता है और लगता है कि जैसे बिल्कुल बड़ी है और बालगा है। मैं कह सकता हूं कि शायद ये बात और ये गुफ्तगू भी जो है वो आई हो, ये ऐसे ही लोगों की जानिब से जो निशाना जो है वो बनाते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग हम में से भी हैं जिनकी तहकीक ये है कि इनकी उम्र उस वक्त में क्या थी? 19 साल जो है वो थी, 17 साल या 19 साल जो है वो इनकी उम्र थी। लेकिन सही बात यह है कि अक्सर मुअर्रिखीन और सीरत निगार ने जो उम्र लिखी है वो 7 साल की जो है वो 6 साल की उम्र में, और रुखसती मदीना के अंदर सन 2 हिजरी के अंदर जो है वो हुई। और उस वक्त में इनकी उम्र जो थी वो 9 साल की उम्र जो थी। इसके ऊपर ताज्जुब नहीं जो है वो करना चाहिए कि कैसे उस वक्त में जो है वो ताज्जुब। आज ना मालूम कितनी बच्चियां ऐसी है कि जो 9 साल के अंदर, अभी सुना कि नहीं गुफ्तगू, हिंदुस्तान की बच्ची, हिंदुस्तान के रहने वाली जो बाहर कुछ दिनों तक उसने गुजारा, तो उसके बारे में कहा जाता है कि है तो 7-8 साल की है और लगती है कि वो 15 साल की है। तो एतराज लोग करते हैं कि कैसे जो है वो रुखसती हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो शादी किया 6 साल की उम्र में, और 9 साल की उम्र में जो है वो रुखसती हुई। खुद हजरत आयशा खुद ये फरमाती हैं, इनके मुतालिक फरमाता है, इनके मुतालिक आता है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कि हुमैरा जो है वो इन्हें कहा जाता, निहायत ही गोरी और निहायत ही खूबसूरत जो है वो थी। खुद फरमाती हैं, तज़व्वजनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाना इब्नतु सित्तिन व उदखिलतु अलैहि वाना इब्नतु 9 सिनीन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे
6 साल की उम्र में शादी किया और मैं दाखिल की गई जबकि मेरी उम्र 9 साल की जो है वो थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई, उस वक्त में इनकी उम्र 18 साल थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र कितनी थी? 18 साल जो है वो उम्र थी। और इनसे 2210 रिवायत, बाद लोगों ने और भी लिखा है, लेकिन अक्सर लोगों ने यही लिखा है 2210 रिवायत है। औरतों से मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं, अक्सर मसाइल इनके जरिए से जो है वो महफूज है। जाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ मर्दों के लिए इस दीन को जो है वो नहीं भेजा, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। और औरतों के मसाइल को औरतें ही जो है वो जानती हैं। बाज़ ऐसे मसाइल हैं कि जिनको खास तरीके से औरत ही जो है वो जानती है। तो इनसे 2210 हदीस जो है वो मरवी है। वस्तहक़्क़त अन तकूना अफ़क़ह निसाइल उम्मा, ये हकदार हुई इस बात की कि इस उम्मत की औरतों में सबसे बड़ी जो है वो, सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा समझने वाली फकीह जो है वो अलल इतलाक़ जो है वो कहलाएं। बल्कि कहा जाता है कि शरीयत के अहकाम में से रोबो अहकाम 1/4, एक चौथाई जो है वो इनसे मरवी है। शरीयत के अहकाम में से चौथाई, 4 हिस्से में से एक हिस्सा जो है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनक़ूल है। यक़ूल अबू मूसा अल अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु माशकल अलैना असहाब मोहम्मदिन हदीसुन क़त्तु, कभी भी हम लोगों के ऊपर, हम असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई हदीस दुश्वार नहीं गुजरी। फसअलना आयशा तान, उसके बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, इल्ला वजदना इंदहा इल्मा, हमने उसके मुताल्लिक़ उनके पास इल्म जो है वो पाया। देखिए सहाबा रुजू होते थे किस तरफ? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ। इसी तरीके से मसरूक़ के बारे में जो है वो आता है, अन्नहु क़ील लहू हल कानत आयशा तुहसिनुल फ़राइज़, क्या वो फ़राइज़ को जो है वो अच्छी तरह जो है वो जानती थी, यानी फ़राइज़ के जो मसाइल हैं। फ़क़ाल ऐ नाम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लक़द रअयतु मशीक़त असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूनहा अनिल फ़राइज़, कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने देखा कि असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशाइख में से लोग जो है वो उनसे फ़राइज़ के मुताल्लिक़ जो है वो सवाल करते और फ़राइज़ के मुताल्लिक़ जो है वो जवाब देते। फ़राइज़ इधर उधर का सब्जेक्ट नहीं है, सब पढ़ता है, जितना नंबर भी लाए और जैसा भी लाए, जितना भी माहिर हो, जो इसका पढ़ाने वाला होता है वो रोज दिन इसी में रहता है, तो उसी की तरफ जो है वो लोग इहाला जो है वो करते हैं कि फलां साहब से जो है वो पूछिए। कभी दिल्ली से खबर आएगी, कभी जमशेदपुर से खबर आएगी, हमारे साथी लोग, हालांकि जो लोग भी जो है वो लोग बड़े बड़े माहिर, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जो है वो बचने के लिए क्या है भाई, मेरे पास जो है मसाइल पूछते हैं, रोज दिन जो है वो आता रहता है। और असल में जो है मैं इससे मुताल्लिक़ जो है तो कैसी माहिर थे, अंदाजा लगा सकते हैं कि सहाबाए किराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से उनकी तरफ रुजू करते थे और वो जो है जवाब दिया करती थी। इसी तरीके से आता है, ज़ोहरी ने कहा, क्या कहा, लौ जुमिया इल्मुन नास कुल्लुहुम सुम्मा इल्मु अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सारे लोगों के इल्म इकट्ठा किए जाए, जमा किए जाएं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के इल्म को, फ़कानत आयशा तो औसहुम इल्मा या अफ़ज़लुहुम कहा गया है, तो हजरत आयशा का इल्म सबसे वसी और सबसे अफजल जो है वो होगा, अगर सारे लोगों के इल्म को जो है वो इकट्ठा किया जाए। इसी तरीके से बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत आई है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बेशक उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, फजलो आयशा निसाए का फजल सरीद अला साइर ताम। हज़रत आयशा की फजीलत में बहुत सारी रिवायत है, उन रिवायतों में से एक रिवायत यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के ऊपर हजरत आयशा की फजीलत ऐसे ही है जैसे सरीद को सारे खानों के ऊपर, खानों में एक उम्दा खाना सरीद जो है वो कहलाता है,
اس کھانے کو جس طریقے سے سارے کھانوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے عورتوں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، انہ سأل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من احب الیکا، کون سب سے زیادہ محبوب ہے آپ کے نزدیک؟ قال عائشہ، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو کیا فرمایا؟ عائشہ۔ اس کے بعد فقلت من الرجال، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مردوں میں سے کون ہے؟ فقال ابوہا، تو کہا کہ ان کے باپ۔ جس طریقے سے عورتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب حضرت اور سب سے پیاری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اسی طریقے سے مردوں میں سب سے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے سلسلے میں جب بات جو ہے وہ آئی تو انہی کا نام آیا اور خلیفہ اول وہی منتخب ہوئے، اور دلائل کی روشنی میں اور فضائل کی روشنی میں بھی واقعی وہی حقدار تھے اور وہی خلیفہ اول ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک جو ترتیب ہے خلافت کی یا عشرہ مبشرہ کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب بالکل صحیح ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے وقت میں وفات سے قبل جب آپ سے کہا جاتا نماز کے لیے اور آپ نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہوتے تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر کون؟ ابو بکر صدیقہ کے والد کا نام تھا ابو بکر۔ صدیقہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر جب نماز پڑھائیں گے تو ان کی قرات کے اوپر ان کا رونا جو ہے وہ غالب آئے گا، یعنی وہ جب نماز پڑھاتے تھے یا نماز پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، تو لوگ قرات سنیں گے یا ان کے رونا کو جو ہے وہ سنیں گے۔ دیکھیے اپنے والد کے متعلق، اور ان کے خواہش تھی کہ حضرت عمر جو ہے وہ پڑھائیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ ابو بکر جو ہے وہ لوگوں کو نماز جو ہے وہ پڑھائیں۔ تو بیماری کے ایام میں صدیقہ کے والد صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ان کا انتقال شوال کے مہینے کے اندر منگل کے دن سن 58 سن جو ہے وہ 58 کے اندر جو ہے ان کا انتقال ہوا۔ 17 رمضان کو جو ہے ان کا انتقال ہوا، اور ان کی نماز جو ہے وہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ پڑھائی، اور یہ جنت البقیع کے اندر دفن کی گئی۔ بڑی دلیر اور بڑی بہادر تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے اندر جنت البقیع کی طرف جو ہے وہ نکلنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب نکلے واقعہ جو ہے مشہور ہے، یا ان کے بارے میں آتا ہے غزوہ احد کے اندر زخمیوں کو پانی پلانے والیوں میں جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ تھی، یا ان کے فضائل میں اور دوسرے واقعات بھی جو ہے بہت سارے آئے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جن کو فرشتے حضرت جبرائیل جو ہے وہ سلام کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل یہ سلام، جبرائیل تجھے جو ہے وہ سلام کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت جبرائیل کے سلام کا جواب جو ہے وہ دیا اور کہا کہ وہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن میں نہیں دیکھتی۔ خوش نصیبی دیکھیے، ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ سلام کا جواب دیتی ہیں حضرت جبرائیل کے، اور حضرت جبرائیل انہیں سلام کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی شادی ہوئی، کس طریقے سے شادی ہوئی، بخاری شریف کی روایت ہے،
ख्वाब के अंदर 3 मरतबा जो है वो दिखाया गया रेशमी पर्चे के अंदर, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इनको जो है वो देखा। शादी से पहले की जो है वो बात है। इसी तरीके से इनके फजाइल और खसाइस में से ये है कि जब इनकी बारी होती, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी जब इनके यहाँ होती, तो उस बारी में तोहफे और तहाइफ बहुत जो है पेश किए जाते। लोग जो है वो इंतजार जो है वो करते कि जब हजरत आयशा की बारी होगी तो तोहफा जो है वो भेजेंगे। ये बात अज़वाज मुतहरात के ऊपर गिरा भी जो है वो गुजरती। क्या बात है भाई, किसी की भी बारी हो, किसी की भी बारी में जो है वो तोहफा जो है वो आए। तोहफा जब आता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आयशा की बारी में जो है वो आता है। और इस काम के लिए उन लोगों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वो भेजा उम्मे सलमा को, और कहा कि आप लोगों से कहिए कि लोग जो है वो और भी बारियों में जो है वो भेजें। ये क्या खुसूसियत है कि उन्हीं के बारी में जो है वो भेजते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे तकलीफ मत पहुंचाओ आयशा के सिलसिले में। उसके बाद उन लोगों ने तैयार किसको किया? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अनहा को, प्यारे नबी की जो चहेती बेटी है, कि तुम जो है वो जाकर के कहो प्यारे नबी से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तू उससे मोहब्बत नहीं करती जिससे मैं जो है वो मोहब्बत करता हूँ? यकीनन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सबसे चहेती और सबसे प्यारी बीवी कौन है? यह हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। जिस तरीके से दुश्मनों ने सबसे ज्यादा निशाना बनाया किसको? हजरत अबू बकर और उमर को जो है बनाया। शिया रवाफिद जो इनके पीछे जो है पड़ गए। हजरत आयशा के और हजरत हफ्सा के ये फजाइल तो अहले सुन्ना वल जमाआ के नजदीक है, चंद जो है वो मैंने बयान किए हैं। लेकिन शियों का इनके मुताल्लिक क्या अकीदा है और वो क्या कहते हैं वो बयान करने के लायक नहीं है। शायद बाज बात बयान करूं तो पहली बार जो है वो सुनने को ना मालूम कितनी बार जो है वो शियों की बातें जो है किताबें जो है मैंने पढ़ी, और कितनी किताबें पढ़ी और कितनी जगह जो है वो बयान किया है। लेकिन पढ़ते रहिए और पढ़ने के नतीजे में कुछ ना कुछ बातें जो है वो आती रहती है। अभी जब मैंने पढ़ा तो मैं हैरान रह गया एक बात के ऊपर। एक तो ये कि शियों के यहाँ हजरत आयशा और हजरत हफ्सा ये दोनों उनके नजदीक जो है वो पाक दामन नहीं है। तोहमत जो है वो लगाते हैं इन दोनों के ऊपर और कहते हैं कि कब्र से निकाल करके इनका मेहदी मुंतजर जो है वो निकाल करके जो है वो इनके ऊपर हद जो है वो नाफिज करेगा। वो कहते हैं हजरत आयशा के बारे में कि ये काफिरा है और जहन्नम की हकदार है। वो कहते हैं हजरत आयशा के बारे में कि हजरत आयशा और हजरत हफ्सा ने इन दोनों ने जो है वो मिल करके और इनके दोनों के बाप ने जो है वो मिल करके जो है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया। और कुरान मजीद की जो ये आयत है अफा इमाता और कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, किस तरीके से जो है वो जोड़ा जाता है और बात जो है वो गढ़ी जाती है। क्योंकि इस्लाम को मिटाने के लिए, मिसमार करने के लिए ये शुरू से ही रोजे अव्वल से ही थे, तो पीछा जो है वो नहीं छोड़ा। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा हजरत जिब्राइल के बारे में कि ये जिब्राइल वही जो लाए थे देना था अली को, दे दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जिस जिब्राइल को ये तमीज नहीं है उनके कहने के मुताबिक कि किसी की चीज किसी को जो है वो दे दिया, तो 23 साल में जो लाए वो सही है, उसके ऊपर कैसे यकीन जो है वो किया जाएगा। ये वही लोग हैं जिनका ईमान कुरान मजीद के ऊपर नहीं है, जो ये कहते हैं कि कुरान मजीद का बहुत सा हिस्सा जाये हो गया। लेकिन हमारा ईमान ये है कि कुछ भी हिस्सा जाये नहीं हुआ। कुरान तो जैसा आया है वैसा है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के अंदर कोई शक और कोई शुबहा नहीं, और जा बजा जो है वो चैलेंज जो है वो आया है। ये कुरान जिसके मुताबिक रब का फरमान है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, जिक्र के नाज़िल करने वाले हम हैं और हम इसके मुहाफिज हैं।
ये इधर की गुफ्तगू जो मैं इधर से जो ला रहा हूँ, अदावत और दुश्मनी को जो है वो बता रहा हूँ, और उनका पीछा जो चल रहा है उसको जो है वो बता रहा हूँ। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त में दुश्मनों ने कहा कि अब तो नामो निशान मिट जाएगा, इन शानिया का हो अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इनका दुश्मन ही जो है वो क्या है, बेनामो निशान है, वही दुम्बुरीदा है, उसी की जड़ कट जाएगी, उसी को कोई पूछने वाला, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो देखिए उस जमाने में भी किस तरीके से इस तरह की बात कही। प्यारे नबी की वफात के बाद जब प्यारे नबी के वो सहाबा जिनके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को जो है महफूज रखा, कुरान मजीद किताब की शक्ल में जो है वो आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर के जो है वो कहा, और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो इसको जमा करना जो है वो शुरू किया। उनका कहना है कि एक आयत जो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनता था, जब जमा किया तो उसको नहीं पा रहा हूँ। फिर खोजते खोजते एक सहाबी के पास जो है मैंने पाया, बुखारी शरीफ के अंदर ये आया है। इसके जरिए से मैं बताना ये चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि कुरान का हिस्सा जाया हुआ, हमारा तो ये कहना है कि कुरान का एक हर्फ भी जाया नहीं हुआ। अरे कोई इंसान की हिफाजत है क्या कि देख रेख कर रहा है, आंख लग गई है, क्या से क्या जो है वो गायब हो गया। ऊपर वाले की हिफाजत थी, ऊपर वाले की निगरानी थी, जिसके बारे में कहा जाता है अल हई अल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसे ना आग आती है ना जिसे नींद आती है। इसलिए एक हर्फ भी इधर उधर होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिनके यहाँ इस तरह की बात कही जाती है, वो कैसे जो है वो गवारा करते कि ये इस्लाम के मानने वाले, जिन्होंने इस्लाम की हिफाजत की खातिर सब कुछ जो है वो लुटा दिया, वो चैन और सुकून और इत्मीनान के साथ जो है वो रहे। कैसी तकलीफ पहुंचाया है हजरत अबू बकर और उनके घर वालों को, और किस तरीके से तकलीफ पहुंचाया है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। लोग सूख करके कांटा जो है वो हो गए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी सुना कि नहीं कि इब्तिला और आजमाइश जो कभी होती है शर्फ के लिए जो है वो होती है। वो तो सोचती रही कि अल्लाह ताला ख्वाब के अंदर दिखा देगा, मेरी बरात को बता देगा ख्वाब के मुतालिक। उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सातों आसमान से उनकी बरात जो है वो जाहिर होगी और बरात का ऐलान जो है वो किया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई तो पढ़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया, और जो लोग पेश थे उनमें से जो है वो कुछ लोगों को सजा भी जो है वो दिया। कुरान मजीद की जो आयत है इफ्क से मुताल्लिक, तोहमत से जो है से मुताल्लिक तोहमत जो है वो लगी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर। और ये वाकया जो है वो इस तरह से है कि हौज़ज को लोग उठा करके जो है वो चले गए, समझा कि इसमें जो है वो है, और वो जो है वो वहीं जो है वो रह गई। और सफ़ान सुलमी के बारे में आता है कि बाद में जब उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए, अपने ऊंट के ऊपर जो है वो सवार किया, वो पैदल चले और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर के जो है पहुंचे। दुश्मनों ने जो आवाज फैलाई कि जरूर कुछ दाल में काला है, इधर उधर की बातें और चर्चा जो है वो होने लगा। और कुछ मुसलमान भी जो है वो धोखे में आ गए और उनकी जानिब से भी कुछ बातें जो है वो आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इसका नक्शा खींचा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लज़ीना जाऊ बिल इफ्के उसबतुन मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। यही है इफ्क के मुताल्लिक, यानी जो है वो ये कबीह और शनी झूठा इल्जाम और झूठी तोहमत जो है वो लगाई। इफ्क कहते ही है मामले को उलट देने को, पलट देने को। सिद्दीक़ा के ऊपर इन लोगों ने कैसी तोहमत लगाई जो है वो आप अंदाजा जो है वो लगाई है। उस बतुम मिनकुम, ये तुम्ही में से क्या है, एक जमात है। ला तहसबूहु शर्रन लकुम, इसको तुम अपने लिए शर जो है मत समझो। आता है ना कुरान मजीद के अंदर, असान तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम,
मुमकिन है कि किसी चीज को तुम शर जो है वो समझो, लेकिन वो तुम्हारे हक में क्या हो, खैर हो। तो यहाँ तो शर ही शर है बज़ाहिर। 1 महीने तक कैसी इब्तिला और आजमाइश है, किसी के ऊपर तोहमत लग जाए, उसके घर का क्या हाल होगा, नबी का क्या हाल होगा, जिस पे तोहमत लगी उसका क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन रब ये फरमा रहा है, ला तहसबूहु शर्रन लकुम, इसको अपने हक में अपने लिए शर मत जानो, बल्कि वो तुम्हारे लिए क्या है, खैर है। और हर शख्स के लिए उनमें से मक्तसब, जितना उसने जो है वो कमाया है और जिस कदर जो है वो काम जो है वो अंजाम दिया है इस बोहतान तराशी के अंदर, इस गुनाह जो है वो कमाया है, उसी कदर वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु, और जिसने इसके बड़े हिस्से को अंजाम दिया है। ये अब्दुल्लाह बिन उबई में सरूर मुनाफिक, जब मुनाफिकों की टोली और जमात जो थी वो पेश जो है वो थी, उनके बारे में आया कि लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके वास्ते दर्दनाक जो है वो अज़ाब है। ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम, शर जो है वो शर के अंदर खैर किस तरीके से, एक तो ये कि सब्र करने के नतीजे में इसका अंजाम जो है वो क्या है भाई, जन्नत है, ठिकाना क्या है, जन्नत है। और सब्र करने के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से जो है बरात नाज़िल की, जो हमेशा हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए उसकी तिलावत जो है वो की जाएगी। और पढ़ने वाले हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो मकाम है, उनका जो रुतबा है, उनके बुलंद रुतबा को जो है वो जानेंगे। आता है अन्ना मन खाज़ा फी हदीस इफ, तोहमत और बोहतान की गुफ्तगू के अंदर, बात के अंदर जो लोग जो है वो मशगूल हुआ, जिन लोगों ने गौर खौज किया, मुसलमानों में से वो 3 हैं, 2 मर्दों में से और 1 औरत में से। मर्दों में से कहा जाता है मिस्ता बिन असासा और हसन बिन साबित और हमना बिन जहश। खता किसी से भी खता हो सकती है, ये लोग मोमिनों में से थे, इनके मोमिन होने में कोई शक और कोई शुबा नहीं है, अल्लाह इनसे राजी हो। हजरत हसन के बारे में हम और आप जानते हैं किस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई जो करते थे, मदद करते थे, लोग हेजो बयान करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे और ये जवाब जो है वो देते थे। इन तीनों के ऊपर जो है वो हद जो है वो जारी की गई, हद क़ज़फ़ जो है वो जारी हुई। बहरहाल इब्तिला और आजमाइश हर एक शख्स के साथ है, कह सकते हैं कि ये इब्तिला और आजमाइश ही थी हजरत आयशा के साथ, उनके घर वालों के साथ और नबी के साथ भी। लेकिन हर इब्तिला और आजमाइश के अंदर खैर का जो पहलू होता है, और खैर का पहलू यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरात का इजहार फरमा करके इनके मकाम और मर्तबा को किस तरीके से जो है वो बुलंद किया। मिसाल के तौर पे वो खातून के जिससे जो है वो गलत काम जो है वो सरजद हुआ और गलत काम का उसने एतराफ जो है वो किया, और जिसके नतीजे में उसके ऊपर हद जारी हुआ, लोग समझेंगे और कहेंगे कि अरे वो इनकार ही कर देती, वो छुपा ही देती, उसने हक बात कह करके, सच बयान करके और जो सही बात थी वो बतला करके अपने खानदान का नाम जो है वो रोशन कर दिया कि कैसी खातून थी, किस खानदान की जो है वो खातून थी। तो बात बज़ाहिर जो है वो अच्छी नहीं मालूम होती है, लेकिन दूसरे पहलू को देखिएगा तो जो है कि बात बहुत ऊंची होती है। यही वजह है कि हजरत खालिद जब रजम किया जा रहा था तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जो है वो अच्छा जुमला इस्तेमाल नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिना है, अगर उसने तो ऐसी तौबा की है कि अगर मदीना वालों के ऊपर 70 लोगों के ऊपर भी जो है वो क्या की जाए, बांट दी जाए, तो भी जो है वो किफायत जो है वो करे। तो यकीनन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बड़ा मकाम हासिल है। अभी गुफ्तगू में ये बात आई कि 1/4 हिस्सा जो दीन का है ना, इन्हीं से जो अमर हुई है। और गुफ्तगू जो है वो अब खत्म करते हैं। इनको ये शर्फ हासिल है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जो जिस वक्त में हुआ तो आखिरी
जो है वो मिसवाक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वो कड़ी थी, मिसवाक चबा करके, यानी इनका लुआब और प्यारे नबी का लुआब जो है वो एक साथ मिला। और ये भी जो है वो आता है गोश्त खाने के अंदर, बाद रिवायत के अंदर जो है वो आता है कि जहां से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ये गोश्त जो है वो खाती थी, उसी मकाम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे। ये मोहब्बत की जो है वो दलील है कि कैसी मोहब्बत जो है वो इनसे थी। और इन्हीं को ये शर्फ हासिल है कि इनके घर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। और घर की बात तो छोड़ दीजिए, इनको ये शर्फ हासिल है कि इनकी गोद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। और ये कहती हैं कि मैं किसी की भी आसान मौत के ऊपर रश्क नहीं करती जब से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत को देखा है। लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरे ही नहीं, वफात ही नहीं हुई। और देखिए ये कहती हैं कि मेरे गोद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरी गोद में इंतकाल जो है वो हुआ। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु, इन्हीं को ये शर्फ हासिल है कि इनके घर के अंदर, हुजरा आयशा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है। ये पहले जो है ये बिल्कुल बाहर था, यानी मस्जिद के अंदर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकान नहीं था। लेकिन अब जो है वो मस्जिद के अंदर, क्योंकि मस्जिद की तोसी हुई है तो मस्जिद के अंदर जो है वो घर आ गया है। तो हुजरा आयशा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से इनसे जिस कदर अहादीस मरवी हैं और बीवियों से इस कदर अहादीस मरवी नहीं है। और ख़ास मसाइल जो हैं वो इनसे जो है वो मरवी हैं। मिसाल के तौर पे हैज़ वगैरह के बहुत सारे मसाइल है। मिसाल के तौर पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तालीम दे रहे हैं और तालीम देने में वो समझ नहीं पा रही है, तो खींच करके हाथ पकड़ करके जो है उसे करीब किया और मसाला जो है बताया। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियां हैं, उन शादियों के अंदर जो हिकमत है वो हिकमत जो है वो मालूम होती है। अगर 1/4 ही मानिए, ज्यादा नहीं, 1/4 ही जो है वो मानिए, चौथाई ही जो है मानिए, तो चौथाई हिस्सा कैसे जो है महफूज रहता। और ये भी है कि इन्हीं को शर्फ हासिल है कि जब प्यारे नबी इनके लिहाफ में होते, यानी इनकी बारी के अंदर होते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम उतरता। बीवियों में से और कोई बीवी नहीं है कि जिनकी बारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो कुरान मजीद की आयतें जो है वो नाज़िल होती। ये शर्फ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों के दिलों में अपने नबी की मोहब्बत और नबी की अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत, जिनके बारे में जो है वो आया कि वो मोमिनों की क्या है, माएँ हैं। अज़वाज मुतहरात क्या है, मोमिनों की माएँ हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सफिया और खदीजा, इस तरीके से हर एक के साथ जो है उम्मुल मोमिनीन का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़वाज मुतहरात की मोहब्बत हम लोगों के सीने में बसाए और प्यारे नबी की बताई हुई बातों के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम।